Welcome to Vikrant Academy. I am going to teach you class 10 algebra. That is your pair of linear equation in two variables. I am going to teach you very easiest method. That method is called elimination method. There are so many methods: elimination method, substitution method, cross multiplication method, and so on. So I am going to teach you very simple, very simple methods. That method is called elimination method. In elimination method, you have to make same either x and y along with the coefficient. अगर elimination method में आपको x और y दोनों को सेम करना होगा, लेकिन यहाँ में ऑलरेडी सेम है, इस क्वेश्चन के अंदर में ऑलरेडी सेम है, तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर लिखने के लिए अगर लिखते हैं कि x प्लस वाई, कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज y 1 और कोफिशिएंट ऑफ y दैट हियर 1, दोनों का x और y का कोफिशिएंट क्या है, एक एक है, लेकिन यहाँ में x में नीचे में इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 and this is your equation 2. So generally you have to write equation 1 multiplied by 1 and equation 2 is also multiplied by 1. But I am going to teach you very simple or technique formula. You have to no need to write either 1 multiplied by someone and 2 multiplied by someone coefficient of x and y. ऐसा लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ दो पार्ट करना है, x plus y equal to 14 and you put a one line vertical and write again x minus y is equal to 4. X minus y is equal to 4. You see here, x coefficient also 1 and x is also coefficient 1, and but you see plus y is having plus y and minus y. So you are in equation, pair of linear equation in two variables. That means what? Either x भी वैरी करेगा और y भी वैरी करेगा, आप दोनों का मान को निकालना है। ऐसे हालत में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे कि इक्वेशन 1 multiplied by 1, इक्वेशन 2 multiplied by 1. It is better understood by the evaluator, examiners. वो अच्छा से कुछ समझ जाएंगे कि इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो multiply by 1 and here also multiply by 1. No need to write in equation either. ये अंडरस्टूड, ये समझ में पूरा क्लियर है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस वाई को ऑल्सो 1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, प्लस वाई और माइनस वाई बोथ आर सेम, सो यू मल्टीप्लाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x minus x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So now you go like this, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. You add it, add the both the term, but when you by adding you can write it by adding दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो यू ऐड करने के बाद में यू कैन पुट हियर, आप लिख सकता है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो बाय एडिंग या बाय ऐड, यदि आप लिखता है तो भी ठीक है और नहीं लिखता है तो भी ठीक है, ये क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है एग्जामिनर को, ऑलरेडी एग्जामिनर जो भी एवेलुएटर है, टीचर्स है, वे अच्छा से समझ जाएंगे कि बच्चा के पास में बहुत अच्छा ज्ञान है और इसने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, और इसको नहीं लिख के भी अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो डायरेक्ट ऊपर में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन. लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, तो यहाँ पे लिख सकेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ऐड
Simply write x plus y is equal to 14 and x minus y equal to 4. So here plus y and minus y, it will be cancel out. Then it will be 2x. 2x is equal to 18. So it will be x is equal to 18 by 2, that is your 9. So there is a value of x is equal to 9. I don't have the space in the board, so you can take a screenshot or write down this. Value is equal to 9 and y value is equal to 5. So therefore 14. So you can write like this, 14 is equal to 40. So you can write like both sides are LHS, both sides are equal LHS and RHS. You can write it simply verified. Verified. That means your answer is absolutely correct. Your answer is absolutely correct. अगर you want to write, अगर आप बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो लिखिए 10 the required answer is absolutely correct. Absolutely correct. और दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, therefore the required answer is absolutely correct. या सिंपली आप लिख सकते हैं वेरीफाइड या RHS या इक्वल टू LHS, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आंसर चेक करने के लिए नहीं देगा और आप सलाइटली रफ में कहीं भी वेरीफाई करके आप लिख सकते हैं. इसको मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ, फिर से मिटाऊंगा, फिर से समझा दूंगा और आप फिर से अगर समझें तो काइंडली आप ध्यान दो, अच्छा से देखो और मैं फिर समझाने जा रहा हूँ. अगर आप मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो. Now I am going to restart again. I am going to teach you again. You try to understand. That means you try to better understand. So there is a two equation. Equation number 1 and equation number 2. You are going to solve it by the elimination method. Elimination method means either इसको प्लस करो और ये माइनस करो. और elimination method में दो x और y में से दोनों किसी को एक को सेम करना पड़ता है, लेकिन इसमें दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों सेम होने से एक प्लस y है और एक माइनस y है. तो ऐसे हालत में क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को जोड़ देंगे. नो नीड टू राइट बिकॉज ऑफ यू हैव रिटन ऑलरेडी x minus y is equal to 4. Now try to understand. This is your plus y or minus y, it will be cancelled out. So there is your 2x is equal to 18. So therefore x is equal to 18 by 2 is equal to 9. So therefore value of x is equal to 9. You can put the value of 9, value of x in any equation, either 1 and 2 and 3 and 4 and so on. You will be getting exact answer. So now you can put x is equal to 9, previously I was putting in equation number 2, just now I am putting in equation number 1. में कोई अंतर नहीं होगा, x का वैल्यू कितना है, राइट अगेन इक्वेशन x plus y is equal to 14. So therefore you put 9 plus 5y is equal to 14. So therefore y is equal to 14 minus 9. So therefore y is equal to 9. So thus our answer is x is equal to y is equal to 5. So therefore now you see y is equal to 5, x is equal to 9 and y is equal to 5. So thank you, this much only. If you want to take a screenshot, you can take it. Now I am going to give you another example, another question. इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखिए
और समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों ही बोर्ड में, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम कंटेंट सेम क्वेश्चन है। सो काइंडली इसको अच्छा से ध्यान दीजिए। और ध्यान देने के लिए मैं बिल्कुल इजी एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दोगे इसको। ये इसको ऐसे लिखना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। बेसिक बाउंड्री डालना है, बेसिक लाइन सेगमेंट वर्टिकली नीचे तक खींच दीजिए और खींचने से क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ हमको इक्वल करना है, दोनों में देख सकेंगे, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में भी x है। तो हमको अगर y को खत्म करना चाहते हैं तो x को खत्म करेंगे तो दोनों में कोफिशिएंट x से मल्टीप्लाई होगा। अगर y को खत्म करना पड़ते हैं तो इसके कोफिशिएंट से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसके कोफिशिएंट से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा होने से क्या होगा, y का वैल्यू सेम मिलेगा। अगर हम y को वैल्यू नहीं निकाल के x का वैल्यू हम इसी जगह से काट देना था, लेकिन अगर हम आगे बढ़ा के लेके जाते हैं और बिल्कुल 2-3 ढंग से 2-3 मेथड से पता समझा दे रहे हैं, काइंडली देखने के बाद में अगर y को खत्म करना है, पहले मैंने x को y को खत्म करना है, तो एक कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 2 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 3। तो क्रम उल्टा हो जाएगा, इक्वेशन 1 3 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो राइट लाइक दिस 2 और हियर इज योर 3। ऐसा करने से आपको जरूरत नहीं बच जाएंगे कि हमको इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, नो जरूरत नहीं लिखने के लिए। खुद अंडरस्टूड है, टीचर एग्जामिनर इवेल्युएटर ऑलरेडी समझ जाएगा कि स्टूडेंट के पास में बहुत ये है नॉलेज है जो इसने ऐसे किया है। तो क्या हो गया, ये 3x हो गया और ये क्या हो गया प्लस 6y हो गया और इक्वल टू क्या हो गया 6, और ये हो गया 2x हो गया माइनस 6y हो गया इक्वल टू 14। पहले जैसा ही पहले इक्वेशन में जो सोल्व किया था सेम पैटर्न यहाँ में भी आ गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। अब इसको आप लिख सकेंगे, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसा हालत में देखेंगे माइनस प्लस 6y और माइनस 6y बोथ आर डिफरेंट नंबर, सो यू कैन ऐड, बोथ आर डिफरेंट नंबर, सो लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 14। So here is your plus 6y or minus 6y, it will be cancelled out. So here will be 5x equal to 20. 5x equal to 20. So therefore x equal to 20 by 5. So it will be cancelled out 4 times. So value of x is equal to 4. Write down. हमारे इसके लिए बहुत छोटा है इसलिए आप इसको लिख लो। लिखने के बाद में फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और वैल्यू x का किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम आपको समझा देंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। Start. You mind it or you make up your mind, you made your mind, you made up your mind, you fix in your mind. x का वैल्यू कितना मिला है 4 मिला है। x का वैल्यू इधर आप इक्वेशन 3 में डालिए, 4 में डालिए, 2 में डालिए, 1 में डालिए, कहीं भी डालोगे y का वैल्यू कितना मिलेगा सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक जितने भी टीचर आपको बताया होगा कि y और का वैल्यू या x का वैल्यू सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में डाल के बताया, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में भी डाल के बता दूंगा कि y का वैल्यू कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर आप 1 से ही स्टार्ट कीजिए या 2 से स्टार्ट कीजिए पहले जैसा, उसके बाद में मैं 3 4 में डाल के बताऊँ। Now putting the value of, ये सेंटेंस लिख लेगा, putting the value of x is equal to 4 in equation number 1। अभी सीबीएसई वाला, बिहार स्टेट वाला, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी है, हिंदी वाले लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अंग्रेजी में सीबीएसई वाला लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 in the equation number 1।
You can put equation number 1 value of x in 1 2 1 2 3 4 किसी में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डालने से बाद में भी y का वैल्यू सेम मिलेगा। तो नाउ सी हियर रिपीट इट अगेन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। सो मेरे बोर्ड में स्पेस कम इसलिए मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर 2y is equal to 2 minus 4. So therefore 2y is equal to minus 2 by minus 2. So therefore y is equal to minus 2 by 2. Cancel out 1. So therefore y is equal to minus 1. Now you can take it screenshot. इसको अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं बोर्ड में जगह कम है फिर इसके बाद मैं फिर से समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में x का वैल्यू मान के या y का वैल्यू मान के फिर इसका वेरिफिकेशन करके बताता हूँ। अभी तक जितना भी टीचर आपको सिखाया होगा, जितने भी ट्यूटर पढ़ाए होंगे सिखाए होंगे, वो सिर्फ 1 और 2 में वैल्यू डाल के सिखाया होगा। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू गिव द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ यू सी, नाउ पुट आइदर x और y, किसी का भी मान डाल सकते हैं। Now putting the value of, now putting the value of x is equal to 4 in equation number 3. You see here 3x plus 6y is equal to 6. So therefore 3 into 4 plus 6y is equal to, plus 6y is equal to 6. So now we can write like this, 12 plus 6y is equal to 6. Now we can write 6y is equal to 6 minus 12. So therefore you can write like this, 6y is equal to minus 6. So therefore y is equal to minus 6 by 6, cancel out 1. So there is your, so therefore value of y, value of y is equal to minus 1. Nothing difference at all. कोई भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं आया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और फिर से मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। You can find out the answer yourself. No need to take the answer your answer sheet. आपको आंसर देखने का जरूरत नहीं है आंसर में, और आंसर शीट को खुद से आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने जो बनाया है, मैंने जो मतलब क्वेश्चन को बनाया है, क्या मैंने जो भी चीज को बनाया है वो सही परफेक्ट है कि ना। सपोज ये चाय बनाने जाता है तो भूल गया चीनी के, फिर टेस्ट करके देखो उसमें चीनी डाला कि नहीं चम्मच। वही हाल है, मेरा मैथमेटिक्स बनाया, इसमें चेक करके देखेगा कि मेरा मैथमेटिक्स बनाया हुआ सही है ना गलत है। इसके लिए मैं वेरिफिकेशन सिखाता हूँ, और वेरिफिकेशन को गौर से ध्यान से माइन्यूटली देखिए और खुद ही परफेक्ट और मास्टर बन जाएगी मैथमेटिक्स। नाउ बच्चों आप देख लो, खुद से वेरीफाई करो, खुद से सीखो, खुद से प्रैक्टिस करो। भी टीचर्स, हम लोग टीचर शिक्षक लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और समझाने के बाद में अपने से फॉलो करो। मैं वेरीफाई कर जाता हूँ, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो वेरीफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई में किसी भी इक्वेशन को पुट कर दीजिए, आइदर 1 2 3 4 5 6। तो आप 1 2 को छोड़ो, वेरीफाई कर में 4 में ले लो। वेरीफाई 4 इक्वेशन, वेरीफाई 2x minus 6y is equal to 40. 2x minus 6y is equal to 40. ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4 से वेरीफाई कर सकते हैं, और पुट x is equal to 4 and y is equal to minus 1. y is equal to minus 1. y is equal to minus 1. तो अगर वैल्यू करेंगे तो बोथ साइड्स आर इक्वल। We are having two hands, so mathematics also having two hands. One is called LHS, another is called RHS. So right here 2 into 4 minus 6 into 1 is equal to 14. Minus 1, here is your 2 into 6 into
-1. 6 into -1 equal to 40. So 2 4 hours 8. 2 4 hours 8 or minus minus plus 6 equal to 14. So therefore both sides 14 is equal to 14. So LHS equal to RHS. Equal to RHS. आप लिख सकेगा वेरीफाइड, आप लिख सकेंगे वेरीफाइड या इंटरनेशनल वर्ड लिखेगा तो लिखेगा QED, दैट मीन्स कोड इरेक्ट डिमोन्स्ट्रेटर। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब से हो जाता है, मिला के पढ़ लें, ठीक है। ये मतलब और ये LHS इक्वल टू क्या है RHS, वेरीफाइड। वेरीफाइड ये आप सिंपल हो गया और इंटरनेशनल लिखेंगे QED, दैट मीन्स कोड इरेक्ट डिमोन्स्ट्रेटर। यही हमको प्रूव करना था, दिखाना था, साबित करना था। और भी एक अच्छा लास्ट सेंटेंस लिखना चाहोगे तो लिखोगे 10 our solutions of this given problem is absolutely करेक्ट। इस सेंटेंस को आप देखिए, तो इस सेंटेंस को लिखने से क्या होगा, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टेस्ट रूप में लिखा हुआ है SOL, ऊपर एल डाल दिया, सॉल्यूशन का शॉर्ट में फॉर्म होता है SOL। तो इस सेंटेंस को आप लिख सकेगा और लिखेगा, अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप मुझको मेरा ये टॉपिक्स, मेरा टीचिंग अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना आगे बढ़ाना हो बढ़ाते रहिए। मैं इससे अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर आपको इंटरेस्टेड टीचिंग देने के लिए कोशिश करूंगा। है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को एंटरटेन करूंगा और अच्छा से अच्छा सुधार कर लाने के लिए कोशिश करूंगा। अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग देने के लिए अपने तरफ से कोशिश करूंगा। सो मोस्ट वेलकम टू योर कमेंट। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कोशिश कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।